Swiss is already richer, even before foundations to lay. We are coming up with the exhibition center next to you. Already the tender has been awarded to a company called Exicon. It is on 13.5 acres with 1,000 parking slots, 55,000 square feet of exhibition space, and 16,000 square feet of retail. It will be starting in another 1 year. The tender has already been awarded. 2 data centers have been announced in Mohali in last 1 month. One is by SIFI and the other is by ISAR, Ruya Group, in collaboration with Nahar Group of Industries. Both are coming up in Mohali very soon. Tata Advanced System is spending 4,500 crores to upgrade Government of India only semiconductor fab lab in Mohali. Yesterday, I and Seema Bansal, our Vice Chairperson of Punjab Development Commission, had a meeting with Chairman of Air India Express Nipun. He is also CCO of Air India, and he has promised that more international flights and national flights will start from Mohali and Amritsar very soon. The timing couldn't have been better. We have the largest Punjab Invest Summit coming up starting tomorrow, and today we are launching Infosys, so it is already successful. Once again, thank you very much, and I assure you, under the leadership of our National Convener Shri Arvind Kejriwal and our Honorable CM Sardar Bhagwant Singh Maan, we extend full support to you for all your future endeavors and this endeavor. Thank you very much. Sat Sri Akal. Thank you, Sanjeev ji, for enlightening us with your thoughtful words and guidance. We truly appreciate the clarity, direction, and motivation you've brought through our address. We are honored to welcome a distinguished leader whose commitment to progress and public service continues to inspire communities across our region. And now, it is time for the address we've all been looking forward to. The address of our own Honorable Chief Minister of Punjab, a distinguished leader whose presence adds exceptional significance to today's event. Ladies and gentlemen, please welcome Honorable CM to address the gathering. Thank you. Thank you very much. दिल दियां गहराइयां चों इन्फोसिस दे सारे परिवार नूं और नाल नाल जिन्ने भी उन्हां दे ऑफिसर साहबान, डिसीजन मेकिंग बॉडी, उन्हां दा सारा प्रबंधकी ढांचा जिहड़ा इत्थे अज इस ग्राउंड ब्रेकिंग सैरेमनी च स्पैशली आया, मैं सारिआं नूं बहुत बहुत बधाई दिना, बहुत बहुत मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशनस। और मैं अरदास करदा परमात्मा अगे कि इन्फोसिस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और साडे पंजाब की तरक्की दे विच अपना बनदा योगदान पावे। श्री जयेश संगराजका जी जो CFO इन्फोसिस, डॉक्टर समीर गोयल मोहाली हैड ने जो इन्फोसिस दे, मैं उन्हों का और उन्होंने जिन्ने भी अधिकारी पहुंचे ने, मैं उन्होंने सारे अज दे इस बड़े इमोशनल फंक्शन दे विच पहुंचण ते जी आया कहना कि तुसीं घर साडे आए, असीं फुल्ले ना समाए, साडे घर तशरीफ ले आया नूं साडे सारियां वल्लों जी आया नूं, जी आया नूं। अज पंजाब लई खास तौर ते इंडस्ट्री लई एक बहुत हिस्टोरिकल डे है। ग्लोबल कंपनी इन्फोसिस जिहड़ी है बड़ा वड्डा नाम है दुनिया दे विच IT सैक्टर दे विच,
इस मौके पर मैं इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति जी, उनके देश के प्रति योगदान को याद करता हूं और जिक्र करता हूं, जिनको फादर ऑफ इंडियन IT सेक्टर कहा जाता है, जिन्होंने इन्फोसिस, जिनके माइंड में इन्फोसिस का आइडिया आया और आज इन्फोसिस हजारों नहीं लाखों घरों में चूल्हे जलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रही है। बहुत लोग परिवार इन्फोसिस के परिवार में शामिल हैं। जो आज वाला प्रोजेक्ट है 286 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है, ਉਹਦੀ ਅੱਜ भूमि पूजन का रस्म उद्घाटन होया और इस प्रोजेक्ट दे नाल 2700 डायरैक्ट तौर पर रोजगार मिलणगे। 2700 मुंडे कुड़ियां ऑफिसर जूनियर जिन्ने भी 2700 डायरैक्ट ते सैकड़े इनडायरैक्ट जिहड़े इंप्लॉयमेंट जनरेशन होनी है। इस गल ਲਈ मैं बहुत बहुत बधाई देना। और ये जिहड़ा इंटीग्रेटेड कैंपस स्थापित किया जाऊगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक, फूड कोर्ट ते होर सारियां सहूलतां ने। 3,50,000 स्क्वायर फीट जगह जिहड़ी है वो बिल्डअप एरिया होगा। 3,000 सीटां जिहड़ियां इत्थे बैठण लई, इत्थे 3,000 समर्था होगी। ਜਿਹੜਾ मोहाली च पहला तो चल रहा है इन्फोसिस, ਉਹਦੀ 1000 सिटिंग कैपेसिटी है, ਇਹਦੀ 3 टाइम्स ज्यादा होगी, 3000। ਤੇ मैं गवर्नमेंट ਵੱਲੋਂ ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब, ऑन बिहाफ ऑफ हार्ड वर्किंग पंजाबी पीपल, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ श्योरिटी करदा कि गवर्नमेंट ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हर किस्म का सहयोग मिलूगा, बशर्ते कि तुसी साडे मुंडे कुड़ियां नूं काम दिंदे रहो, तरक्कियां दिंदे रहो, उन्हां दीयां डिग्रियां मुताबक उन्हां नूं काम दिंदे रहो। और इहदे नाल इन्फोसिस जिथे जांदा कल्ला नहीं जांदा, पहला तो कल्ला ही जांदा है, पर बाद दे विच उत्थे बाजार बड़ा बन जांदा है, मार्केट वड्डी बन जांदी है। तो मैनूं उम्मीद है कि इन्फोसिस दे इत्थे इन्ने वड्डे प्रोजेक्ट दे नाल जिहड़ियां सिस्टर कंपनीज ने जां होर IT सैक्टर नाल रिलेटेड कंपनीज ने वो इत्थे आउणगियां ते हज़ारां दी गिणती विच रोजगार रेवन्यू जिहड़ा वो पंजाब सरकार नूं मिलूगा। और टैक्नोलॉजी और डिजिटल सेवावां दे विच इन्फोसिस वर्ल्ड दी फेमस कंपनी है। इस वक्त 3,47,034 3,37,034 मुलाजम इस वक्त इन्फोसिस च काम कर रहे हैं पूरे देश, जिथे भी विदेशों च ब्रांचा ने। जो पिछला साल सी 2025-2026 जिहड़ा फाइनैंशियल ईयर सी, उहदे विच 9 तो 10 महीनों का जिहड़ा रेवन्यू है वो 15.12 बिलियन डॉलर सी इस कंपनी का। एडी वड्डी कंपनी है और पंजाब नाल खास तौर पे प्यार है। पिछले दिनों कुछ इस तरह का हो गया सी जिवें परिवार च हो जाता है, कुछ शिकवे शिकायतां सी ते असीं कहा भी असीं रुस के घरों जाण नहीं देना अपने परिवार के मैंबर नूं। असीं ऑफिसर्स इन्हां दे डिसीजन मेकिंग बॉडी बुलाई और एक परिवार के मैंबर वांग असीं इन्हां नूं समझाया और इन्हां ने समझिया भी ते इन्हां ने कहा ओके मैं अपने जद्दी घर च ही रहूंगा। इत्थे अज एक बहुत वड्डी अचीवमेंट है। सो इंडस्ट्रीयल एरिए दे विच पंजाब हर रोज तरक्की दीयां पौड़ियां चढ़ रहा। साडे कोल मार्च 22 तो पंजाब दे विच 1,55,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है और जिहदे नाल 5,44,000 नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं काम मिलिया। साडे कोल नेस्ले है, साडे कोल क्लास
फ्रैडनबर्ग, कारगिल, बर्बियो, डैनन वर्गियां ग्लोबल कंपनियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। और मैं दस दिया मैनू बड़ी खुशी हो रही है, कमिंग 20 मार्च ਨੂੰ एक टाटा स्टील लुधियाना ਦੇ ਵਿੱਚ 3200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नाल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ फैक्ट्री है ਉਹਦਾ ड्राई रन चल रहा है। स्टील फैक्ट्री है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਆਫਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਟਾਟਾ ਦਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਰ, ਔਰ ਚੀਪੈਸਟ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ और धरती ब्लेस्ड धरती है। ये पंजाब गुरुओं, पीरों, शहीदों, पैगंबरों की धरती है। बहुत फर्टाइल लैंड है सर, और गुरबाणी हर वक्त किसी ना किसी स्पीकर दे विच गुरबाणी चल रही हुंदी है, सरबत दा भला मंग रही हुंदी है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दा स्नेहा दे रही हुंदी है। और मैं जिथे भी जाना मैं गल कहना, अज भी मैं गल कहूंगा कि ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਇਨਫੋਸਿਸ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ USA, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, UK, UAE, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਲਾਕਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ 3 ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਨੇ। ਔਰ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਸਟ ਹਾਂ ਔਰ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਆਪ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ 13, 14, 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ पूरी दुनिया में चलता ही चलता है। तो पंजाबी जिंदा दिल हैं और पंजाबी जो हैं वो पहली बात तो आप यहां पर ऐसे ऐसे बातें भी पंजाबियों के बारे में फेमस हैं कि जाते भी वहां जहां कोई और जाता ही नहीं, वहां आपको पंजाबी मिल जाएगा।
कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार चांद पर गए तो जलंधर के एक ट्रैवल एजेंट के साथ अमेरिका ले जाने की 20 लाख में बात हुई थी, पता नहीं कहां उतार गया उजाड़ में। मैंने कहा चलो ढाबा खोल लेते हैं, कोई ना कोई यहां भी आएगा। तो हम इस बात के लिए माने जाते हैं कि हम एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया की खोज करते हैं हम लोग। तो जब मैं एज एन आर्टिस्ट काम करता था पंजाबी कम्युनिटी में, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड शोज होते थे। अमेरिका में एक शो के बाद किसी ने डिनर पे घर पे बुलाया, तो उनके यहाँ एक बुजुर्ग था जो 80-85 साल का था। तो बातें बहुत पुरानी बता रहा था। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा बुजुर्ग बाबा जी तुसी कदों का गए सीगे, अमेरिका कब आए थे? उसने कहा बेटा मैं आ गया था 1939 में। मैंने कहा जी फिर तो कोलंबस के पीछे पीछे ही आ गए थे आप तो। फिर तो मतलब अगर कोलंबस को अमेरिका नाम मिलता तो हम ढूंढ लेते, अमेरिका तो हमने ढूंढ ही लिया था वैसे। ऐसे खुश मिजाज लोग हैं हम सर। और आपकी कंपनी में जब खुशी खुशी कोई काम करेगा, दिल से काम करेगा अगर वर्कर, तो प्रॉफिट पीछे रह जाता है सर। एक रिश्ता जो है बनता है, जो लेबर का जब ऑफिसर्स का आपस में जो भावनात्मक रिश्ता बनता है वो बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे काम के लिए आपने राइट जगह चुनी है सर। 10 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट पर जैसा कि संजीव जी ने बताया कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइटें और ज्यादा संख्या में आएंगी। और फ्यूचर में, क्योंकि देखो बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, गुड़गांव ट्रैफिक की समस्या है। यहां पर बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी रोड्स हैं और विद इन 80 किलोमीटर के रेडियस में हमारे यहां पंजाब इंजीनियर कॉलेज है, पीएयू है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमारे पास हमारा पलाक्सा यूनिवर्सिटी है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, पटियाला में थॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी बन गई अब, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, और चटकारा है, यहां लांड्रा में कॉलेज है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, चंजेड़ी में यूनिवर्सिटी है, और आईआईटी रोपड़ है। तो ये 80 किलोमीटर के रेडियस में है सब कुछ। जब हमने कोरिया जापान हम गए थे मंत्री के साथ, जब हमने उनको ये बताया तो हैरान रह गए कि आप विद इन 1.5 आवर की ड्राइव में सब कुछ है यहाँ पे, कहां किस सेक्टर में आना है आप आइए। और कहा जाता है, ये कहावत है, मतलब कहावतें भी ऐसे जिंदगी के तजर्बे से बनती हैं कि अगर आप बेंगलोर में और अगर आप रशिया में, रशिया बेंगलोर के कंपैरिजन है, रशिया बहुत बड़ा है एरिया में, अगर आप 20 घंटे लगातार ड्राइव करते हो किसी भी साइड को, तो समझो आप रशिया में ही हो, इतना बड़ा है। और ऐसे ही बेंगलोर के बारे में कहा गया है कि अगर आप 20 घंटे किसी तरफ भी ड्राइव करते हो, समझ लो बेंगलोर में ही हो अभी। तो ये ट्रैफिक की समस्या हमारे यहां नहीं है सर, हमारे यहां 10 मिनट का रास्ता है। और आप एयरपोर्ट और आप जहां भी जिधर भी जाना है, हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, स्टेट हाईवे बन रहे हैं। हम आपके जो दुख दर्द को दूर करने के लिए बैठे हैं। मेरे पास कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट आए तो उन्होंने कहा जी हम इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आने वाले हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, बस जी गवर्नमेंट का सहयोग मिल जाए, अगर सपोर्ट करे गवर्नमेंट तो बहुत, आप सपोर्ट देना जी हमें। मैंने कहा जी बिल्कुल गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैं कह रहा हूं, हम आपको सपोर्ट देंगे। थोड़ी देर बाद फिर उसने कहा बस इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे हम, गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट हो जाए तो कमाल ही हो जाए। मैंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी विल सपोर्ट यू। फिर कहा उसने, कहता अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट हो जाए फिर तो कमाल ही हो जाएगी सर। मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड। मतलब मुझे लगा कि शायद कोई सब्सिडी चाहता होगा, बिजली सस्ती दे दो मुझे,
जब प्लॉट जो मेरे खरीदने के लिए उसको लीज कर दो, लीज कम कर दो, ऐसा कुछ कहेगा। वो कहता जी बस यही कहना था कि अगर आपकी सपोर्ट रहे। मैंने कहा सपोर्ट तो है। मैंने कहा किस किस्म की सपोर्ट चाहिए? कहता जी तंग मत करना बस हमें। मतलब ये पॉलिटिशियंस का, पार्टियों का, सरकारों का ये इमेज बना हुआ है कि तंग ही करते हैं बस। अगर आप तंग ना करें तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे। मैंने कहा जी तंग करने वाले नहीं हैं, हम तो सुख देने वाले हैं। आप 3 प्रोजेक्ट की मेरे पास मंजूरी के लिए लेके आओगे, मैं 5 प्रोजेक्ट अब आपके अप्रूव कर दूंगा। बस मेरे लड़के लड़कियों को, मेरे जो बच्चे बच्चियां, मेरे नौजवान देश के जो पंजाब के हैं उनको काम दे दो। इससे सर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगी, वो अपने घर बैठकर काम करेंगे। अपना घर ही है पंजाब, पूरा पंजाब उनका घर है। तो ब्रेन ड्रेन खत्म होगा। जो हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा की तरफ भाग रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। फिर जो नशे की अलामत जिसके विरुद्ध हमने युद्ध छेड़ा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगी। आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जी, आपके दोस्त के यहां या आपके रिश्तेदारों के यहां कोई हो जो काम भी करता हो, कोई रोजगार भी करता हो और नशा भी करता हो? उसके पास टाइम ही नहीं होता जी। वो शाम को आता है अपने बच्चों के साथ हंस खेल के और खाना खा के सो जाता है, अगले दिन फिर काम पे जाना होता है। मैं पंजाब के नौजवानों के हाथों से टीके, नशे के टीके छीनकर उनको टिफिन पकड़ाना चाहता हूं कि काम पे जाइए, अपने परिवार में सुखी रहिए। तो ये जो NR नारायण मूर्ति जी हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए आपने जो आज यहां पूजा करके काम शुरू किया है, भगवान परमात्मा वाहिगुरु इसमें बरकत दे और काम ज्यादा होगा। जितना स्टेट को रेवेन्यू आएगा और स्टेट को रोजगार जनरेट होगा स्टेट का, और हम तरक्की करेंगे, सारे मिलकर तरक्की करेंगे। क्योंकि जब भी कोई किसी को डाउन करके या किसी को नीचे जब फेल करके अगर कोई सफल होता है, वो सफलता नहीं होती। सभी सफल हों तो समाज सफल होता है। तो पंजाब में मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी आया दिल से आया, तो उसके लिए तरक्की के रास्ते भगवान खुद खोलता है, वाहिगुरु खुद खोलता है। और हमें भी समत बख्शे परमात्मा, बल बख्शे कि हम पंजाब की सेवा में जो लगे हुए हैं उसमें हमें फैसला लेने की बुद्धि दे परमात्मा। आप सबको तंदुरुस्त रखे और आप जब मर्जी मिलने आ जाया करो सर, जब मर्जी मुझे बुला लिया करो, आते रहेंगे। कई चीजों का बाद में पता चलता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने आप लोगों से पूछकर बनाई है, कोई उसमें भी वो फ्लेक्सिबल है। कोई अगर उसमें चेंज करना है, कई बार वाह पे आ जानी है या राह पे आ जानी है, कई बार किसी चीज को इस्तेमाल करने के बाद पता चलता है कि इसमें ये कमी है। तो अगर आपको लगे कोई आपका सजेशन है या कोई आपकी कोई समस्या है तो आप हमें बताइए, हम उस हिसाब से उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज कर लेंगे। हमारा काम बस सिर्फ यही है, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो इन्वेस्टर है उसको अच्छा माहौल मिले, उसको काम करने का माहौल मिले और तंग करने वाली बात जो है वो दिमाग से निकले। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई हो, तरक्कियां करो और पंजाब की तरक्की में अपना योगदान दो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। Thank you, Honorable Chief Minister, sir, for an impactful address that has strengthened our resolve and broadened our vision. Your leadership and insights continue to inspire us. We are grateful for the vision and encouragement you have shared with us today. We now request Jayesh to felicitate the Honorable Chief Minister, Sardar Bhagwant Singh Manji, with a token of gratitude for the upcoming developments.
ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। May I now request Sunil to felicitate the Honorable Minister Shri Sanjeev Arora ji. I now invite Dr. Sameer Goyal, Infosys Mohali Center Head, for the formal vote of thanks. Honorable Chief Minister Sardar Bhagwant Singh Mann ji, Honorable Minister, Cabinet Minister Shri Sanjeev Arora ji, Infosys CFO Jayesh ji, Sunil, Niladri, dignitaries on the dais, respected delegates from Government of Punjab, distinguished guests, and my Infosys colleagues. ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਇੰਸਟੈਂਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 90s 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਮੁੰਬਈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਤੇ 90s ਸਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਐਫਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਰਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਾਈ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਫੋਸਿਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਸਰ ਜੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ 'ਚ, ਤੇ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਵੀ ਟਰੂਲੀ ਬਲੀਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ ਫॉर ਰੀਜਨਲ ਗਰੋਥ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੈਂਪਸ ਕਨੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ এনवायरमेंट ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਟੀਮ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੀਮ, HR ਟੀਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੁਲੀਗਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਵੇ, ਨਈ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
Thank you, Dr. Sameer, for sharing your thoughts and a wonderful vote of thanks. May I now request the Infosys leadership to escort dignitaries to the Executive Center.